Hello students, how are you? Let us start a series of lectures known as the structure of the atom. So in the first lecture we will talk about the Dalton's atomic theory. Before that also some Greek philosophers and Indian philosophers have spoken about the atom, but we will start our discussion with the Dalton's atomic theory. So if in short we are going to discuss the Dalton's atomic theory, according to Dalton, atom was atom is or was, I mean whatever you say, atom is indivisible, it cannot be further divided. According to John Dalton, atom is indivisible, and yes, and it is neutral. Neutral means it has got no charge. And then the second point, atom can neither be created, atom can neither be created nor destroyed. Whatever atoms we have in the nature on its own. We cannot create or destroy any other atom. And then the third postulate, atoms of the same element are alike. Means all atoms of hydrogen are same, all atoms of carbon are same, all atoms of sulfur are also same. So this is what he said. I have put a tick here. And then this is he says atom combine with other atoms to form compounds. Atoms combine, atoms of different elements combine in simple whole number ratio to form compounds. ऐसा वो उन्होंने कुछ बोला हुआ है. And then they also say atom is the smallest unit. Atom is the smallest unit to take part in a reaction. ये सारी की सारी बातें सर जॉन डाल्टन ने बोल रखी हैं और यही होता है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ये उस टाइम का थ्योरी है जब ही इन्होंने, यहाँ पर एक आई होना चाहिए, यस, ये उस टाइम का थ्योरी है जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था. तो सबसे पहले हम लोग यही आज सीखते हैं, डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो ये इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और एक एक करके सारे पार्टिकल्स निकलते जाएंगे और ये सारी से सारी बातें गलत हो जाएंगी. जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो सब बातें बेटा अभी देखना धीरे धीरे सब गलत हो जाएगा. सो लेट अस कम टू द सेकंड पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर, डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. This discovery of the electron was done with the help of an experiment known as cathode ray tube experiment. Now what is this cathode ray tube experiment? In this cathode ray tube experiment, a glass tube was taken. A glass tube has been taken here. It has an opening here like this. This is a small glass tube. This is closed from here, and they have added a metallic plate this side, and there is a metallic plate this side. Over here we are joining with the plus, and this side we are joining with the minus of a battery. And the battery that we are using is having the voltage of 10,000 volts. So high voltage current is passed, and when high voltage current is passed, and over here we have gas molecules at very low pressure.
Now this was the experiment, and this experiment was done by William Crookes. So what William Crookes do? William Crookes took a glass tube, and in this tube he filled gas molecules of different gases one by one at a very low pressure and tried to pass current at a very high voltage. Now this minus end of the battery is connected to this plate, and this plate is now known as the cathode. Minus is known as cathode and the plus is known as the anode here. So this is the cathode and this is the anode here. Cathode is minus, and what was observed? Something was observed here. So what William Crookes observed? William Crookes observed that some gas is moving from the cathode and it is moving towards the anode, and he named this as cathode rays. So William Crookes observed some rays moving from the cathode towards the anode. So he found some rays and he named them as the cathode rays. Some rays moving from cathode towards the anode. These rays were named cathode rays, and because of this only this was known as the cathode ray tube experiment. So विलियम क्रूक्स ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस उन्होंने लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी कर लिया, और ये डिस्कवरी हमें बहुत आगे जाके हेल्प होने वाली थी. एंड दिस डिस्कवरी वाज डन इन द ईयर 1878. तो ये ईयर तो उतने पूछे नहीं जाते हैं, बट देन फॉर द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अगर हमें ईयर भी पता हो. तो ये वाली बात पता चल गई, और इसके बाद क्या करना था, हम लोगों ने कुछ और भी इस एक्सपेरिमेंट को ये ऐसे ही पढ़ा रहा. एंड इट वॉज अगेन रिपीटेड. दिस एक्सपेरिमेंट वॉज रिपीटेड बाई जे थॉमसन. दिस एक्सपेरिमेंट वॉज रिपीटेड बाई जे थॉमसन. जे थॉमसन repeated this experiment, and this experiment when he was repeating, he repeated in 1897. And when he repeated this in 1897, he studied the properties of the cathode rays. कैथोड रेज के सारे प्रॉपर्टी को इन्होंने फर्दर स्टडी किया, और क्या पता लगा लिया, इन्होंने ये पता लगा लिया कि ये कैथोड रे नहीं है. दिस इज़ नॉट अ कैथोड रे. इसमें कोई पार्टिकल है, और इस तरीके से इन्होंने कुछ बात अपनी बतानी शुरू कर दी, और इन्होंने एक डिस्कवरी किया और कंक्लूजन कर दिया. When he studied the properties of the cathode rays, he discovered cathode rays actually contain negative particles. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था, नेगेटिव पार्टिकल्स, और यही आगे चल के इन्हीं का नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हम याद कर डालेंगे यहीं पर साइड बाय साइड. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. Mass of electron was 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. And then he also said the charge of electron. Charge of electron was found as minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. तो ये तो बहुत हल्का पार्टिकल था, और ये इतना ज़्यादा हल्का पार्टिकल है कि ये 9.1 मतलब समझ लो उसके आगे 10 to the power minus 31
kgs। सो इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया, और डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए जे जे थॉमसन वॉज गिवन अ नोबेल प्राइज। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनके जो टीचर थे विलियम क्रुक्स, उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। तो यहाँ से घटना कुछ आगे बढ़ गई और जे जे थॉमसन ने पहली घटना कर दी, और यहीं से इन्होंने डाल्टन की एक बात गलत साबित कर दी कि एटम इज़ इनडिविजिबल। यहाँ से हमें पता चल गया कि एटम कंटेन्स नेगेटिव पार्टिकल्स, एटम में होते हैं नेगेटिव पार्टिकल्स, और उन्हीं का नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉन। अब तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, जे जे थॉमसन को एक मॉडल देना पड़ गया, मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे जे थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल दिया है। जे जे थॉमसन हैज़ गिवन अ मॉडल, और उस एटॉमिक मॉडल का बड़ा फेमस नाम है, कई नामों से जाना जाता है, क्रिसमस केक, प्लम पुडिंग, वाटरमेलन, ऐसा कुछ। और इनके हिसाब से एटम इज हार्ड, सॉलिड, बॉल लाइक, the charge on the ball is positive, negative electrons are embedded, गड़े हुए हैं, embedded on the surface of the ball, on the surface of the बॉल। एक छोटा सा डायग्राम बना के देख लेते हैं। इन्होंने कहा साहब एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, और ये सारा का सारा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे हलवे में काजू किशमिश होता है, इसीलिए ये प्लम पुडिंग है। पुडिंग का मतलब होता है हलवा, या जो वाटरमेलन होता है उसमें जो सीड्स हैं। तो ये माइनस हो गया, और ये जो पोर्शन है जो ग्रीन में है, दिस पोर्शन जो बीच बीच में है, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। दिस ग्रीन पोर्शन इज द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव है, और इन्होंने कहा टोटल चार्ज इज जीरो, टोटल चार्ज इज स्टिल जीरो। तो यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और बेटे ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है प्लम पुडिंग मॉडल। इसके बाद तो बहुत सारे डिस्कवरीज होने थे, यहाँ पर तो बात रुकने वाली नहीं थी, तो यहीं पर हम लोग इसी लेक्चर में देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। नाउ दिस प्रोटॉन्स डिस्कवरी वाज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ द CRT एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाज अगेन रिपीटेड। कैथोड रे ट्यूब experiment was again repeated, and this was done by Goldstein. There was a great scientist known as Goldstein. Goldstein ने ये वाले को रिपीट किया और ये बताया कि कुछ रेज एनोड से निकलती हैं, some rays are moving from anode टू द कैथोड। मतलब एनोड से भी कुछ रेज निकल रही हैं और वो किस तरफ जा रही हैं, कैथोड। इसी पे वो बार बार इसको रिपीट करते रहे, तो इन्होंने कहा एनोड रेज कंटेन प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का हम लोग यहीं पर देखो जल्दी से मास देख लेते हैं, और ये वैल्यू हमको याद करनी पड़ेगी 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 kg, और जो इसका चार्ज मेजर होकर के आया है +1.6 इंटू 10 टू दी पावर -16 कूलम्स। तो ये वाली घटना हो गई। अब इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से देख लेंगे, कुछ क्वेश्चंस हमारे हो सकता है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएं।
तो क्या किया गया है, एक ट्यूब ली गई है, इस ट्यूब में बारी बारी से अलग अलग हमने गैसेस को भर के देखा और ये देखा कि एक तरफ हमने लगाना है प्लस, प्लस वाले को बोलते हैं एनोड और माइनस वाले को बच्चों बोलते हैं कैथोड। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस कैथोड में छोटे छोटे छेद कर दिए हैं। सपोज करो ये 2 छेद यहाँ से दिख रहे हैं और यहाँ से हमको निकलनी है एनोड रेज। यहाँ से एनोड रेज ऐसा निकल रही हैं, एनोड रेज, और ये इस होल से पार करके इधर स्क्रीन पर यहाँ पर हमको दिखाई पड़ी। तो यहाँ पर देखो सब, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, एनोड रेज आर ऑल्सो नोन एज, एनोड रेज आर ऑल्सो नोन एज canal rays as they pass through tiny holes in the cathode। कैथोड में जो छोटे छोटे से छेद हैं उसमें ये पार निकल जाते हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं कैनाल रेज। अब यहाँ तक भी हमारी बात रुकने वाली नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग ढूंढ रहे थे। यहाँ तक तो कुछ चीज़ें क्लियर हो गई, इलेक्ट्रॉन पता चल गया, प्रोटॉन पता चल गया। फिर एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं, उनकी भी स्टोरी देखते हैं। वन वॉज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट वॉज ई रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बड़ा कमाल करा हुआ है। वॉट हैज़ रदरफोर्ड डन? रदरफोर्ड ने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। अभी ये देखो, डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस से पहले हमको ये जानना पड़ेगा व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा का साइन है, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ये आर्टिफिशियल है, ये क्रिएटेड होता है He2+। हीलियम में वैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लॉस नहीं करता, लेकिन अगर हम हीलियम को बहुत सारी एनर्जी दे दें तो हीलियम का एक पार्टिकल आ जाएगा जो 2+ है। हीलियम 2+ आयन इज नोन एज द अल्फा पार्टिकल। हीलियम 2+ आयन इज नोन एज द अल्फा पार्टिकल एंड इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, एनर्जी इज हाई। और इन्होंने क्या करना था, इन्होंने एक बड़ा सा एटम, बहुत सारा एक एटम्स ऐसे लगा लिए। तो एटम्स कैसे लगाते, इन्होंने एक थिन शीट ऑफ, जिसे हम कहेंगे थिन फॉयल ऑफ गोल्ड लिया। ही हैज़ टेकन अ थिन फॉयल ऑफ गोल्ड। ऐसा इन्होंने बेटा थिन फॉयल ऑफ गोल्ड लिया और यहाँ से इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कर दिया। अल्फा पार्टिकल, छोटे छोटे अल्फा पार्टिकल्स, छोटे छोटे से अल्फा पार्टिकल्स इधर फेंकना शुरू कर दिए अपने मशीन से। ऑफ कोर्स हाथ से कैसे फेंक पाएंगे, अच्छा पता चला आप सोच रहे हैं हाथ से ही फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं है। तब इन्होंने देखा कि इसमें से ये पार्टिकल्स सब सीधे निकल गए। 90% पास्ड स्ट्रेट, 90% ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट, सीधे निकल गए बिल्कुल एकदम। बहुत सारे तो सारे निकल गए और कुछ ऐसे हुए जो थोड़ा सा टर्न हो गए, सम डिफ्लेक्टेड। और कुछ के पार्टिकल्स, बड़ा ही इनको अजीब घटना दिखाई पड़ी, सम ऑफ देम रिटर्न्ड बैक, यहाँ टकराए और यहाँ से वापस आ गए। अब ये जो एक्सपेरिमेंट आया, इनका ऑब्जर्वेशन है 90% पास्ड स्ट्रेट, थोड़े से अल्फा पार्टिकल टर्न हो गए और कुछ अल्फा पार्टिकल वापस आ गए बिल्कुल उसी एनर्जी से। तो इन्होंने कहा यार ये बीच में जो है ना, इन्होंने कहा इन द सेंटर इज पॉजिटिव हार्ड न्यूक्लियस। देखो इन्होंने एक मॉडल दिया है और रदरफोर्ड का मॉडल बड़ा ही इंटरेस्टिंग मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, और इसी का नाम है प्लेनेटरी मॉडल।
एंड दिस मॉडल इज़ वेरी फेमस, और ज़्यादातर बातें हमारी इसी मॉडल से सॉल्व हो गई। इन्होंने बताया कि हर एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिव है। न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ हार्ड। और यहीं पर वो जो अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा आ रहा था, वो अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा आया यहाँ पर, अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा इज़ हीलियम 2+, इसी से आके टकराया और यहीं से वापस चला गया, क्योंकि प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपल्स कर देते हैं। और फिर इन्होंने बताया कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं गड़े नहीं हैं, वो थोड़ा दूर हैं, यहाँ पे इतनी दूर हैं कम से कम, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो खाली जगह है, दिस इज़ द हॉलो स्पेस, और इसी हॉलो स्पेस से बहुत सारे ये जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो सीधे निकल जाते हैं। बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे निकल जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि एटम में तो बीच में जगह है, तो सारी घटनाएं चेंज हो गई। और लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड द रदरफोर्ड्स मॉडल। इन्होंने बोला है इन द सेंटर इज़ अ पॉजिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इन द सेंटर, और इसका चार्ज है पॉजिटिव, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, और ये सॉलिड भी है, इसके थ्रू अल्फ़ा पार्टिकल नहीं निकल पाता है। फिर इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं, जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं, और इसीलिए इस मॉडल का नाम भी है प्लेनेटरी मॉडल। तो ये इन्होंने घटना बता दी। फिर इन्होंने ये भी बताया इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल, और इन्होंने ये बता दिया कि एटम इज हॉलो। देखो ये एटम के बीच में कुछ जगह है, बहुत सारी जगह है, और ऐसा हमारा ये सब चीज़ तय हो गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तो रदरफोर्ड ने बड़ा कमाल कर दिया, और वाकई में दुनिया ने इनको एक नोबेल प्राइज़ भी दिया। नोबेल प्राइज़ मिला इनको फॉर द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई और दुनिया भर की चीज़ें हो गई। लेकिन अब यहाँ पर रदरफोर्ड की एक दिक्कत पड़ गई। रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि ये एटम इतना स्टेबल क्यों है। तो कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर उठने लगे, जैसे कि वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यार इसके चारों तरफ दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, कभी तो वो दिन आना चाहिए ना कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ख़त्म हो जाए तो ये एटम ख़त्म हो जाए। लेकिन एटम तो हज़ारों सालों से और ऐसे ही पूरे हमेशा स्टेबल रहते हैं, तो ये इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। लेकिन यहाँ तक की बात हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा समरी चार्ट बना लेते हैं। लेट अस मेक अ समरी चार्ट जो हमें याद करना पड़ेगा आज के लेक्चर के बाद। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है गोज़ टू जे थॉमसन, और इसका जो मास है, मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और इसका जो चार्ज है वो आता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। और ये जो प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ था, प्रोटॉन डिस्कवरी वाज डन बाय गोल्डस्टीन, और इन्होंने बताया कि मास इज़ इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 kg। तो सॉरी, ये kg में नहीं बताया था इन्होंने, दिस इज़ इन ग्राम्स, आई एम सॉरी, दिस इज़ इन ग्राम्स। और अगर kg में आ जाएगा तो हम लोग इसको बताएंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये वाली घटना हो गई। और इसका जो चार्ज आया, ये आया इक्वल एंड अपोजिट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो पार्टिकल हमारे डिस्कवर हो गए। अब यहाँ से देखो कि बहुत सारी बातें हम लोगों को करनी पड़ती हैं। एक तो होता है इसका रिलेटिव चार्ज क्या है। रिलेटिव चार्ज है मतलब ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसको अगर हम -1 मान लें तो इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, +1। दिस इज -1 एंड दिस इज +1। दिस इज द रिलेटिव चार्ज।
मतलब ये -1.6 बोलने के बजाय हम ये बोल सकते हैं कि यार इसका चार्ज -1 है और इसका चार्ज क्या है +1। और फिर इन्होंने एक घटना और कर दी, ये वाला जो है ये वाला 1.67 इंटू 10⁻24 इसी को कर दिया 1 AMU। दिस इज़ 1 AMU और ये तो इससे बहुत ज़्यादा हल्का है तो इसको कर दिया 0 AMU। तो ये सब इनके एजम्पशंस हैं, हम लोग के 9th लेवल पर या कई क्लासेस में समझने के लिए हम लोग इन वैल्यूज़ का यूज़ करते रहेंगे। देखो ये 10⁻24 है और ये है 10⁻31, तो बहुत ज़्यादा हल्का है भाई उससे। तो इसको एकदम अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने 0 मान लेना है। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से ही हम लोग को दिक्कत आनी शुरू हो गई थी, प्रॉब्लम्स विद, यहाँ पे लिख लेते हैं डिफेक्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का जो मॉडल है ये क्या करता है, डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। लेट अस गो फॉर अ क्विक रिवीजन। जो भी हम लोगों ने इस आज के लेक्चर में किया है देख लें, कहीं कुछ ऊपर वैल्यूज़ तो नहीं गलत लिखी हुई हैं। यहाँ पर भी देखो हमने एक मिस्टेक किया है, इसको करेक्ट कर देते हैं। ये हो गया ग्राम्स में, या कह सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, सो दैट्स ऑल। विद दिस वील से थैंक यू टू लेक्चर नंबर 1। और अब हम लोग इसी सीरीज पर काम करेंगे और सारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम आपको मिल जाएगा।